So example 3 is obtain the solution of wave equation. Obtain the solution of the wave equation of the wave equation, where wave equation is given as dou 2y by dou t square is equal to c square into dou 2y by dou x square. Here y is dependent variable. Y is dependent variable and x and t are independent variables. Independent variables. Okay. So what we do here, we have y is a function of xt. So in place of what is the method of substitution of separable of variables? So method of separation of variables, what we do, आपण काय करतो, एक व्हेरिएबलला आपण दोन व्हेरिएबल्स मध्ये असं सेपरेट करतो. ठीक आहे. सध्या आपला जो व्हेरिएबल आहे तो y आहे and we are going to separate it in two different variables. ठीक आहे. So let me complete first question. Using the method of separation of variable. Using the method of separation of variables. Separation of variables. Okay. So start with the solution and given equation को लिखते हैं एक बार फिर से. dou 2y by dou t square is equal to c square into dou 2y by dou x square. Okay. So here that y is function of x and t. Here y is dependent variable and it depends on x and t. Okay. So in place of this y, we substitute x, which is function of x only, and t, which is function of t only. Okay. So where x is a function of x only, function of x only, and t is a function of small t only. Okay. So when we differentiate this, y is equal to x into t. Okay. And if we differentiate twice with respect to t, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dou y by dou t is equal to x as it is, and since that capital T is function of t only, so it will be dt by dt. Now again differentiating, we get dou 2y by dou t square is equal to x as it is, and this differential will be d2t by dt square. Similarly, what is y? Y is equal to x into t, and on differentiating it with respect to x, means dou y by dou x will be equal to t as it is, capital T as it is, and its differential is dx by x dx. And if again differentiate with respect to x, then it's dou 2y by dou x square is equal to again this t as it is, and this will be d2x by dx square. Okay. Why we have differentiated twice? क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि ये जो वैल्यूज हमने निकाल ली है, अब ये वैल्यूज हम अपने जो गिवन इक्वेशन है उस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है. सो इन प्लेस ऑफ dou 2y by dou t square is equal to, it becomes, so given equation becomes, given equation becomes
ठीक है. So it is x into d2t by dt square, and it is equal to c square into t into d2x by dx square. ठीक है. Now we separate the terms. जहाँ पे x है वो x उसके साथ लेके जाते हैं, जहाँ पे t है वो t उसके साथ लेके जाते हैं. So this can be written as 1 upon t into d2t by dt square, and it is c square here 1 by x into d2x by dx square. Again we just do some simplifications here. So what the c square also take with t, c square also take with t. So this will be 1 upon c square into t d2t upon dt square, and this is equal to यहाँ से c2 हट जाएगा. Here will be 1 upon x into d2x by dx square. And now this is LHS, this is RHS, and taking this as a constant, इसको बोलेंगे कोई भी constant k, you can take any number, any variable there. ठीक है. So here each side is constant, each side is constant, and since the variables x and y are independent, x and y are independent, we get d2t by dt square into 1 upon c square t is equal to k. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और 1 by x into d2x by dx square is equal to k. इस इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करेंगे. When you solve this for t, you will get t in terms of some t के लिए सॉल्यूशन मिलेगा. अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x के लिए मिलेगी वैल्यू, और वो दोनों वैल्यूज हमको कहाँ पे लेके जाना है. व्हाट इज अवर y? y is x into t. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है. So here now we have two equations, and this both equations you can see that these are second order equation, second order ordinary equation. ठीक है. So सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वेरी फर्स्ट वी सॉल्व फॉर t. ठीक है. सो 1 अपॉन c स्क्वायर t d2t by dt square is equal to k. Take this here with k, तो ये हो जाएगा d2t by dt square is equal to k into c square t. ठीक है. Means what? This can be written as t double dash minus k c square into t is equal to 0. ठीक है. This t double dash मतलब ये जो second order derivative था, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. We just have to solve second order ordinary differential equations. ठीक है. तो वो आपको पता है. So d2t by dt square minus k c square t is equal to 0. ठीक है. And now if we find its auxiliary equation, so what is auxiliary equation? What is auxiliary equation? Auxiliary equation is m square minus k c square is equal to 0, or m is equal to plus minus c into under root k into under root k. Okay. So now here we have two solutions. Here we have two solutions. So one is plus c, just a minute.
plus c into root k, and second is minus c into root k. Okay, so now we will consider different cases on k. Okay, so very first case, case 1, we consider that agar if k is greater than 0, if k is greater than 0 means k is positive. Okay, so if k is positive, then we will get its roots real and distinct, real and distinct. ठीक है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ के है और ये अगर के पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये रियल नंबर है. ठीक है, so in that case our solution will be, we are solving for t, therefore this t of t will be c1 into e raised to power c. ये c1 जो है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. ठीक है, और c जो है वो हमारा इक्वेशन कंटेन कर रहा है. ठीक है, यहाँ ये वाला c है वो. ठीक है, यू कैन टेक एनी व्हाट कांस्टेंट देयर. ठीक है, लेकिन वो c को, ये c को हम चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज दैट c. ठीक है, सो इट इज अंडर रूट k प्लस c इंटू t plus c2 e raised to power c into under root, here minus, एक प्लस है एक माइनस है. ठीक है, तो प्लस वाला ले लिया, अभी माइनस वाला लेंगे c रूट k इंटू टी. ठीक है, and if you do the same procedure for y. ठीक है, what is not y, x. ठीक है, तो ये d2x by dx square is equal to k. ये x को उधर लेके शिफ्ट कर दो, d2x by dx square minus k into x is equal to 0. If we form its auxiliary equation, then its auxiliary equation will be m square minus k is equal to 0. यहाँ पे लाइन है बीच में. ठीक है, and its roots are equal to what, plus minus under root k. And same case we will apply for x. Same case we will apply for x कि अगर वहां पे भी k अगर पॉजिटिव रहा तो ये भी हमको रियल रूट देगा. ठीक है, तो उस केस में जो उसके व्हाट उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ c3 e raised to power. यहाँ पे c नहीं है इसलिए सिर्फ अंडर रूट k इंटू एक्स. यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस c4 e raised to power minus under root k into x. I hope it is clear to all. ठीक है, so अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इफ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, मान लो कि a और b है. ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन रहता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज c1 e raised to power ax प्लस c2 e raised to power bx. ठीक है, तो c1 और c2 तो हमने ले लिया, यहाँ पे c1 और c2 लिया इसलिए यहाँ पे c3 और c4 लिया. ठीक है, और जो ऊपर वाला था ये c, तो ये तो ओरिजिनल इक्वेशन में ही था हमारे. ठीक है, just don't mix this c with this c1 and c2 c3 c4. ठीक है, और x जब हमने सॉल्व किया उसके साथ कोई c नहीं था, सिर्फ और सिर्फ k था, तो यहाँ पे सिर्फ k आया है. ठीक है, so this is the case 1 when k is positive, if k is greater than 0. Now next move to case number 2. केस नंबर 2 कि अगर k अगर लेस देन 0 होता है तो क्या. ठीक है, अगर रूट है, ऐसे रूट k है और अगर k की वैल्यू अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 है,
तो इसके हमको इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। इमेजिनरी इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब उस केस में ये जो m की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट दिस i इंटू अंडर रूट k। ठीक है, इसको इसको और एक स्टेप अगर आप बढ़ाना चाहे तो, इफ यू वांट टू what increase one more step, so you can write that m is equal to plus minus under root of minus k, और माइनस के को कैसे लिख सकते हैं, दिस इज अंडर रूट ऑफ -1 इंटू के, तो अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ के, सो अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू है i। ठीक है, सो i इंटू अंडर रूट के, ऐसे। ठीक है, सो नो नीड टू राइट दिस इन आंसर, दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, so next case we are going to consider that if k is negative, if k is less than 0, in that case we will get its imaginary roots, purely imaginary roots। ठीक है, और उस केस में if roots are imaginary, if roots are imaginary, अगर रूट्स इमेजिनरी होते हैं, मतलब क्या, कि मान लो कि ऐसे प्लस ए आई और माइनस ए आई, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर, कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। ठीक है, सो तो उस केस में जो सॉल्यूशन हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज c1 इंटू कॉस ax प्लस c2 इंटू sin ax। This is when roots are purely imaginary. This is when roots are purely imaginary. ठीक है, so now we will consider this case for x as well as t। ठीक है, तो t के लिए अगर सॉल्यूशन अगर ऐसा लिखते हैं, तो सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे जो m है वो क्या है, दिस इज प्लस माइनस i इंटू रूट के, प्लस माइनस i इंटू रूट के। तो अगर t के लिए सॉल्व करते हैं तो 4 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हमने ले लिए हैं, c1 c2 c3 c4, और आगे की बात करते हैं, आगे के आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स लेते हैं, दैट इज c5 इंटू कॉस यहाँ पे t के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे c भी है। ठीक है, और सिर्फ x के लिए सॉल्व, दिस इज फॉर t, दिस इज फॉर t के लिए सॉल्व करेंगे तो वहां पे c है, और अगर x के लिए सॉल्व करेंगे तो सिर्फ m इज इक्वल टू प्लस माइनस i अंडर रूट के है, वहां पे c नहीं है। ठीक है, सो c5 इंटू c अंडर रूट के इंटू टी प्लस c6 इंटू c5 हो गया साइन c इंटू अंडर रूट के इंटू टी। दिस इज फॉर t, and now for x, and that is c7 cos under root k into t, cos under root k into, sorry, not t, x, बहुत ध्यान देना है। ठीक है, so and plus c8, this is sin under root k into x, and now what remains, this is the case when k is positive, when k is negative, and now last case we will consider case 3, that when k is equal to 0, when k is equal to 0, so when k is equal to 0 जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा d2t by dt square is equal to 0,
हमारा इक्वेशन क्या था? व्हाट वाज आवर इक्वेशन? d2t बाय dt स्क्वायर माइनस माइनस k इंटू सी स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे k की वैल्यू 0 आ गई, तो ये पूरा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली ऑन इंटीग्रेशन यू कैन गेट आंसर। पहली बार इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा, एक डिफरेंशिएशन वहां से हट जाएगा एंड यू विल गेट देयर सम कांस्टेंट। 8 के बाद 9 यूज करते हैं, 9। ठीक है, इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं, अगेन इंटीग्रेट करते हैं, इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलेगा दिस इज t इज इक्वल टू दिस c9 जस्ट अ मिनट, c9t प्लस c10, c9t प्लस, क्योंकि इसके साथ इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे t आएगा। ठीक है, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो इन दैट केस आवर इक्वेशन विल बी दिस। और सेम अगर k इक्वल टू 0 के साथ अगर x के लिए सॉल्व करते हैं तो d2x बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू c9 हो गया, 10 हो गया, अभी 11 देते हैं। ठीक है, और फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी x इज इक्वल टू व्हाट, c11x प्लस c12, c11x प्लस c12। ठीक है, सो दीज आर दी जनरल केसेस। जब हमने ये k को कंसीडर किया, वी हैव कंसीडर्ड दिस k, so we have put 3 different conditions on k, that if k is greater than 0, if k is less than 0, and whether k is equal to 0। तो जब इस पे अगर MCQ टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आए तो वो ऐसे आ सकता है कि what will be the solution for what will be the solution of this wave equation when that k is positive, या फिर when k is negative, या फिर when k is 0। ठीक है, you don't have to bother about this constants। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो कांस्टेंट्स है वो एक एक लाइन में लिए, 1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 अप टू c12। ठीक है, यू जस्ट डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट्स के जगह पे आप किसी भी आर्बिट्री a b c d e f g h को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बस वो वेरिएबल्स मत रिपीट करना जो हमारे इक्वेशन में है। ठीक है, जैसे कि y है, x है, t है, ठीक है, k है, c है, तो इन वेरिएबल्स को छोड़ के आप दूसरा कोई भी वेरिएबल वहां पे, सॉरी नॉट वेरिएबल, का आर्बिट्री कांस्टेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, सो दीज वर द 3 डिफरेंट केसेस। हमने इसका सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया अभी। ठीक है, सो these are the three cases upon the particular problems, upon the particular problem. Here we are dealing with wave motion. Therefore, we will consider that k is equal to 0. Underline this. Here, since we are dealing with wave equation, therefore that k must be less than 0. ठीक है, तो k लेस देन 0 में हमको जो दो सॉल्यूशंस मिले थे वो ये है,
ठीक है, दिस इज व्हेन k इज लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स मिले थे और इस टाइप का सॉल्यूशन हमको मिला था। दिस इज फॉर, ठीक है, इसको नहीं भी लिखा अपने सॉल्यूशन में तो भी चलता है। तो हमारा जो वेरिएबल था वो y था, y को हमने सब्स्टिट्यूट किए थे t इंटू टी और ये x इंटू टी, ठीक है। तो अब ये t और x की वैल्यू जो हमने केस के लेस देन 0 के लिए किया था, ये दो सॉल्यूशंस हमको वहां पे सब्स्टिट्यूट करने हैं, ठीक है। सो दिस y मस्ट बी y ऑफ xt इज इक्वल टू c5 cos c अंडर रूट k इंटू टी प्लस c6 साइन cos c अंडर रूट k इंटू टी। Similarly, c6 sin c under root k into t. This is the value of t, capital T. And into the value of capital X is c7 cos under root k x plus c8 sin under root k x. So this is the solution, our solution when k is less than 0. It is important because we have here three different solutions, ठीक है। जब k पॉजिटिव है तब अलग सॉल्यूशन है, जब k नेगेटिव है तब अलग सॉल्यूशन है, and when k is what 0, and that time we have different solutions. So this is the general problem, ठीक है। Now we put some what conditions, we put some conditions and we will find its solution again, okay। So in example number 4, find the solution of wave equation, find the solution of wave equation dou 2 y by dou t square is equal to c square into dou 2 y by dou x square, ठीक है। and such that now we will put some conditions, ठीक है। so with, अब ये जो हमारा ये जो कांस्टेंट्स आए हैं ना, ये c5 c6 c7 c8, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हमको निकालना है अभी। सो सच दैट, अब ये जो है गिवन कंडीशन के लिए, ठीक है। सो विथ y इज इक्वल टू some p naught into cos pt, where p naught is constant, when x is equal to L, ठीक है। and second condition is that y is equal to 0 when x is equal to 0, ठीक है। तो what we need to do, we just don't have to solve this problem again, ठीक है। ये जो पूरा प्रॉब्लम दिया है इसको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो यू जस्ट इन दिस प्रॉब्लम यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से आप सॉल्व करो, स्टार्ट करो, ठीक है। और कहाँ तक आपको लिखना है, यू जस्ट हैव टू राइट ओनली द केस व्हेन k इज लेस देन 0, ठीक है। और ये जो है ये फाइनल सॉल्यूशन आपको लिखना है, मींस ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड दिस इन प्रीवियस प्रॉब्लम, तो फिर से उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो सारे स्टेप्स है वो फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। सो व्हाट, इसको स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन, here our problem is dou 2y by dt square, sorry, dou t square is equal to c square into
dou 2y by dou x square. ठीक है. So the solution is given, its solution is given in एग्जाम्पल नंबर 3. जैसे कि मैंने बोला था आपको वो पूरा रिपीट करना है, फिर से बार बार उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. So what was our solution? What was our solution? Our solution was y is equal to c5, c6, c7, c8 और ये जो सारे टर्म्स है उसके साथ. ठीक है. तो यहाँ पे एक ही कंडीशन यूज करेंगे हम, इसलिए ये जो C6, C5, C6, C7, C8 जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय C1, C2, C3, C4. मैंने इसके पहले भी बताया था कि आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स का उतना लोड नहीं लेना है. ठीक है. सो दिस इज C1 into cos, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग दी अदर केसेस. हम उसके दूसरे जो केसेस है वो केसेस हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो उतने सारे कांस्टेंट्स के साथ हमको काम करने की जरूरत नहीं है. जहां पे हम जिस कंडीशन पे काम कर रहे हैं वही कांस्टेंट्स हमको लेना है. और ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे C5 ही लेना है, C6 ही लेना है. यू कैन टेक सम अदर कांस्टेंट्स आल्सो. ठीक है. सो जस्ट फॉर अपने इसके लिए हम यहाँ पे C1, C2, C3, C4 लेते हैं. ठीक है. सो cos C root k into t plus C2 sin sin C root k into t into C3 cos root kx plus C4 sin root kx. अब ये जो हो गया सॉल्यूशन हमको निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन इन एग्जाम्पल नंबर 3. ठीक है. इसके बाद से हम सॉल्व करेंगे और जो कंडीशंस दी हुई है दैट कंडीशंस वी विल यूज. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे यूज करते हैं कि y की वैल्यू 0 है जब x इक्वल टू 0 है. y इज इक्वल टू 0, y 0t इज इक्वल टू 0. ठीक है. जब x 0 है तब y की वैल्यू भी 0 है. उसको ऐसे भी लिखा जाता है, या फिर आप ऐसे भी लिखो कि y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0. मतलब x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा. एंड नो कंडीशन ऑन t. ठीक है. t विल रिमेन एज t ओनली. So using this condition we get 0, y equal to 0 हो गया. x अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos 0 1 हो जाएगा और sin 0 0 हो जाएगा. No condition on t, therefore all the terms containing t will remain as it is. ठीक है. So t पे कोई भी कंडीशन नहीं है यहाँ पे. So this is C1 cos C into root k t plus C2 sin C into root k t. और यहाँ पे इसकी वैल्यू cos की वैल्यू cos 0 के लिए 1 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ आ गया C3 into C3. बाकी C4 के साथ साइन है, साइन 0 0 होता है, तो वो टर्म वहां से चली गई. ठीक है. अब अगर इस कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो टर्म्स है, दिस इज 1 एंड दिस इज सेकेंड. तो इस टर्म को हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये हमने 0 लिया तो आवर t, कैपिटल T विल बिकम 0 एंड वी विल मूव टुवर्ड्स ट्रिवियल सॉल्यूशन. वी विल मूव टुवर्ड्स ट्रिवियल सॉल्यूशन. मतलब अगर कैपिटल T 0 हो गया तो x इंटू टी भी 0 हो जाएगा, मतलब y भी 0 हो जाएगा. ठीक है. एंड हेंस सिंस दिस ब्रैकेट कैन नॉट बी 0, तो बचा क्या यहाँ पे C3. therefore this C3 must be 0. why this C3 is 0? because here the product of 2 is 0. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा. तो ये ब्रैकेट तो 0 नहीं हो सकता. अगर हो गया तो वी विल व्हाट मूव टुवर्ड्स ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो हमको नहीं चाहिए है.
ठीक है, वी आर गोइंग टू फाइंड हियर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, तो C3 की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, सो नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल सॉल्व टुमारो। ठीक है,